victims of cases of acid attackers for whom crime is the only ideology, and hence they deserve maximum exemplary punishment. The law should be one, and there should be no two opinions on this score. Much needs to be, however, done and researched as to why such things happen, and the mindset of the criminal should be studied, and solutions should be found if possible. Thank you. Thank you so much for joining us. So, well, he's saying that the mindset of the criminal should be studied. But the point is, for something like this, one has to know beforehand whether something like this is going to happen or not. So, as you said, these could be personality traits. So, do you think there has to be some kind of mechanisms in schools or otherwise where these kind of people can be picked up early and given the kind of counseling that would actually make them into more responsible citizens? Definitely. As that studies connotes, those children, particularly having conduct disorders during their school or in the college, so those people, they should be picked up, number one. Number two, he is talking about the mindset. I think that's a very important point. Like, if suppose the attitudes towards the women are not changed. Today, front page leading newspaper, I saw that the figures, the ratio, the sex ratio is going down. For 1,000 men, you have, if I remember rightly, it is 949 females, right? And we often see in many states the feticide is much more common among the female feticide. Now, this is kind of a mindset we are talking about. So, males basically, which needs to be changed. Absolutely. So, they need to be picked up early, intervention should be done, and at a societal level. Regarding that acid sale distribution. I'll have to come back to you, sir. We have another viewer. This is Akhilesh with us from Orissa. So, Akhilesh, can you hear me, please? Yes. My question is actually, the government is not able to control the arms. If the guns are sold like chocolates, the bazaar, then how they can control the sale of acid? That's my question. I think that's a very good question. I would want you to comment on this, Alok. अगेन ऐसे एसिड का बहुत बड़ा इस्तेमाल है, मतलब अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कि कहाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं. सबसे बड़ा इस्तेमाल है इंडस्ट्रियल पर्पज में, और उसमें भी ये है कि बहुत सारी लोकल इंडस्ट्रीज घर के अंदर चल रही हैं. लोग घर के अंदर साफ सफाई के काम से लेकर के, जब वो संगमरमर का काम होता है, घर में फर्श बनती हैं, से लेकर के बहुत सारे छोटे छोटे कामों में इस्तेमाल हो रहा है. तो हमने आइडेंटिफाई किया नहीं है, और हमने जैसे रेगुलेट किया वो ऐसे है कि जो हमारे लोकल, जो हमारे घर के नीचे अंकल जी बैठते हैं जिनकी शॉप है, उनके लेवल पे उसको रेगुलेट किया गया कि उनको हमें एक कार्ड देना है अपना, और वो करेंगे. मतलब एक तो ये जो प्रोसेस है वो शायद वर्क नहीं करेगा. अगेन ये है कि बड़ी इसको आइडिया, ऐसा आइडिया है जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया सकता, कि आखिर में मतलब आप वही होगा कि आपने इसको आइडेंटिफाई भी नहीं किया, एसिड वहां तक पहुंच जा रहा है, एसिड उन जगहों तक पहुंच गया है, तो उसके बाद आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे. तो एक ये सवाल है. और फिर जो सर बता रहे थे वो एक दूसरा सवाल वो भी है कि हमें क्या है कि कॉम्पैक्ट, जैसे मैम ने बोला कि कॉम्पैक्ट पैकेज इसलिए भी चाहिए कि देखिए एक पर्पज था, जो सजा देने का एक पर्पज पहले हुआ करता था, वो ये था कि किसी भी बुरी चीज को डिमोरलाइज करना. एक बेसिक आइडिया था. अब 15-15 साल केस चलते हैं. अब जो अटैकर होता है उसकी पूरी फैमिली उसके साथ खड़ी हो जाती है. मतलब इस तरह से प्रोसेस इस तरह का बन गया कि 15 साल में पूरी फैमिली के साथ खड़ी हो जाती है. आखिर में जो पर्पस था कि मतलब सोसाइटी की तरफ से एक मैसेज जाना, वो कहीं जाता ही नहीं है. 12 साल बाद सजा होती है तो कोई मैसेज ही नहीं जाता. इस लड़की के साथ जो होता है वो तो एक अलग ही बात है, वो तो एक समाज का एक रिफ्लेक्शन है, वो एक अलग चीज है. तो ये सारी चीजें ना फाइनली हमें क्या करेंगे कि जैसे एसिड को भी हम इस तरह रेगुलेट कर नहीं पाएंगे कि हर लेवल पे रेगुलेट. Absolutely, because if your local kirana is selling acid, I am not too sure whether he has concentration and have the identification of the person. Well, these are some things that we would have to really look at again. But right now we have to slip into yet another break, but don't go too far as we are coming back with a lot more on the other side. Well, I welcome all your suggestions, all your queries and all your observations regarding what we are talking about today. The topic is very sensitive and very important as we are talking about the plight of the acid attack victims. So do tell us what is on your mind. The lines are open and the numbers are 1800115314 and 23035420. Having said that, we are joined by Sweetie from Delhi. So Sweetie, can you hear me? लॉटरी जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस कार्यक्रम की सराहना करना चाहूंगी, और आपने जैसा कि बिल्कुल सही कहा कि एक एसिड पीड़िता जो है वो हर दिन मरती है. और मैं ये कहना चाहूंगी कि एक रेप
पीड़िता से भी जघन्य अपराध है एक औरत, एक महिला के ऊपर एसिड फेंकना। अब मैं ये कहना चाहूंगी 3 लाख की कॉम्पनसेशन पे जो इनको दी जा रही है, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि 1 लाख अब मिलेगा, 2 लाख बाद में मिलेगा। क्या एक एसिड पीड़िता को 1 लाख देकर अब उसकी कॉस्ट, जो मेडिकल कॉस्ट है, उसको पूरा किया जा सकता है? मैं ये सवाल आलोक जी से पूछना चाहूंगी जो इस स्टॉप एसिड विक्टिम के साथ जुड़े हुए हैं, और ये पूछना चाहूंगी कि क्या अब वो एक ऐसी PIR दायर करना चाहेंगे जिसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके पूरे मेडिकल कॉस्ट का भुगतान सरकार को करना चाहिए? एटलीस्ट इतना तो हम कर सकते हैं इन एसिड विक्टिम के लिए। हम तो किया नहीं अभी एसिड की बोतल को, लेकिन फिर भी इनकी मेडिकल कॉस्ट कंपनसेशन नहीं है। जो इमीडिएटली आया है कि 3 लाख रुपए यानी कि 1 लाख रुपए इमीडिएट जरूरत होते हैं। रीजन ये कि बहुत सारे, एक जो बुनियादी बात थी जिसपे हम बात करें कि जब सरकार कुछ काम करती है तो सिर्फ खाना पूरी के लिए करती है, जो गलत है, पिछले 7 साल से हो रहा है। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट फ्री इलाज हम सबका करती है, अगर हम भी हॉस्पिटल जाएंगे तो फ्री इलाज होगा, पर क्या वो अवेलेबल है? क्या वो बिहार में जब एक छपरा में किसी जगह अटैक हो रहा है या फिर कहीं हैदराबाद में हो रहा था, क्या वहाँ अवेलेबल है? तो समझना ये कि सब लोग आकर सफदरजंग जा रहे हैं इस समय। तो जो इमीडिएट मिला है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और एट द सेम टाइम हम आगे भी बात करेंगे कि भाई ये है, ये खर्चा है, हमने निकाला भी है, वो लगभग 40 लाख 50 लाख रुपए जिस तरह का डैमेज है उस तरह उतना खर्चा होता है। देन और भी चीजें हैं, रिहेबिलिटेशन है, तो हम उस पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। पर एट द सेम टाइम मैं बोलूँ कि थोड़ा सा ये खुशी की बात भी कि जो इमीडिएट 1 लाख रुपए आएगा ना, वो ट्रेवल में वहां से यहाँ पहुंचने में मदद करेगा, और बाकी हम ट्राई करेंगे कि और पर्सनल लेवल पे भी हम कुछ करके हम सब मिल करके करें। और ये लड़ाई इसलिए भी आगे लड़नी है क्योंकि न सिर्फ वो बल्कि कंपनसेशन और साथ में जॉब्स, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं, और समाज से लड़ाई कौन लड़ेगा? मतलब वो भी एक लंबी लड़ाई है जिसको शायद न किसी सरकार से हम शिकायत भी कर सकते हैं, न ही हम कहीं कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और वो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी जब वही समाज जो है जो उस विक्टिम को एक्सेप्ट नहीं करता और उसी क्रिमिनल को अपने घर में बैठाता है। तो शायद लंबी लड़ाई है, लेकिन ये चीज आप एक्सेप्ट कीजिए इस तरह की, अभी फिलहाल एक राहत है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। राइट। Well, right now we have another viewer with us. This is Narayan from Rajasthan. So, Narayan, if you can hear me, please go ahead with what you have to say. Narayan, can you hear me, please? Well, we seem to have lost that connection. अर्चना, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी कि आप, well, yes, can you hear me, Narayan? Yeah. Yeah, please go ahead. Okay, ma'am. Good. I would like to appreciate your channel. Thank you very much. And I'm a great fan of yours, and that's very good channel, and all the time I just watch all the programs of yours. And here is my question. Yes. Ma'am, I have seen a lot of times and that, hello? What? That ma'am, before doing that type of crime, yes, that most of the time accused say to that girl that I will do like that. Just suppose the same thing happened, this program is coming to that, that girl is on your program. And the boy already said to that girl that I will do like that after 2 days or 3 days if you will not get married with me, or if you will not friendship with me. Then can't we make that type of law then if that boy say like that? Sorry? Yes, well, I couldn't really get the gist of what Narayan is saying. Archana? If I'm not mistaken, yes. I think what he's trying to say that a threat to this extent, can't we make that an offense also? Itself, yes. So, because the threat is the precursor. But see, a threat is criminal intimidation. So that's a separate offense in any case under 506 of the IPC. It's punishable with lesser imprisonment, but a threat is also a criminal offense. And stalking is also now there. Stalking is also voyeurism, stalking, yes, everything. That's right, right. अर्चना, तो जब आप गई, अब आप जैसे आपने बताया कि अब सफदरजंग से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, सो आर यू सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट यू आर बीइंग गिवन, और आपको किस तरह की मदद मिलती रही है, और आप और क्या चाहेंगी उसके अलावा? मैम, मुझे किसी भी तरह की मदद नहीं मिली, क्योंकि किसी रिश्तेदार ने या किसी ने ज्यादातर सपोर्ट नहीं किया। मैं 1.5 साल तक अपनी चाची चाचा जी के यहाँ पे गाँव से इलाज अगर मैं कराती तो काफी दूर पड़ता, तो सब अस्पताल में मतलब अच्छे से मुझे इलाज मिला, और मतलब काफी हद तक मुझे इतना जितना मैं आज ठीक हूँ तो वहीं से हूँ।
और मेरी 25 सर्जरियां हो चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल है तो पैसा नहीं लगता है। ये तो एक मतलब थोड़ी वैसी सोच है कि फ्री ऑपरेशन होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफी खर्च होते हैं। जो दवाएं हैं, जो टेस्ट हैं, वो भी हैं, उसके बावजूद भी मैम और भी है। एक टिश्यू स्प्लेंडर इम्प्लांट होता है, सर को पता होगा, तो मैंने 2 बार टिश्यू स्प्लेंडर इम्प्लांट कराया है, तो उसमें मेरा 70,000 मेरा पैसा लग चुका है। अभी एक मेरा ईयर नहीं है, तो वो उसमें भी 80,000 का खर्च बताया है। तो ऐसा नहीं है कि चीजें हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन सरकारी में भी पैसे की जरूरत पड़ती है। और वो भी अगर हमें कोई सरकार या कहीं से देती है तो अच्छे से हमें नहीं मिल पाती है चीजें। तो 3 लाख रुपए मतलब क्या है, मतलब हमको एक मजाक बना के रख दिया है। हमारी एक कहानी सुनने के लिए बैठे हुई है सरकार। मतलब उसको कानून कड़े से कड़ा क्यों नहीं लेके आती है कि लोगों के मन में डर बैठे, और उस लड़की की लाइफ को इतना बेहतर क्यों नहीं बनाती है कि क्राइम करने वाले को खुद ही शर्म आ जाए कि हमने ये क्राइम किया, वो तो फिर भी ऐसे मजे से है। तो उसको मतलब ये सारी चीजें कब आएंगी? मुझे 5 साल होने जा रहा है, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मेरा हर 2-3 महीने के बाद ऑपरेशन होता है, और वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है अच्छी तरह से। मेरे पूरा बॉडी पेन करती है। तो मतलब मैं क्या करूंगी अपनी लाइफ में, मैं किसके सहारे से जीऊंगी? अभी मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा भाई है, मुझे फुल सपोर्ट वो करते हैं, और बाहर से भी है, स्टॉप एसिड अटैक मुझे फुल सपोर्ट करता है। तो मतलब कुछ व्यक्ति हैं जो हम लोगों की पीड़ा को समझते हैं, लेकिन जो समझ काम कर सकती हैं वो हमें कब समझेंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि अर्चना की आज दी अथॉरिटीज दैट बी आज वो जरूर सुन रही होंगी, एंड उम्मीद करते हैं कि शायद उससे कुछ अच्छा निकल करके आएगा। जी मैम, मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच कहूंगी कि अगर वो ऐसा हमारे लिए करें, क्योंकि अगर हमारी लाइफ इसी तरह यूं ही चली जाएगी तो हमारा तो जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं होएगा। एब्सोल्युटली। अभी हमारे साथ एक व्यूअर हैं, वी हैव विद अस लकी फ्रॉम इलाहाबाद। सो लकी, इफ यू कैन हियर मी, वेलकम टू द शो। Well, I think I kept Lucky waiting for quite some time, so maybe Lucky can try again. All right, so coming to you here now. So once हमने ये बात की कि अगर if the schools or if these places, if people are more sensitive, the adults are more sensitive, then these things can be taken care of. But what is at that threshold in a person's mind when he takes such an extreme step? Is that a little moment that can actually pass? Or one would have to do something like this only then be satisfied? What is that one turning point? Right. Most of the time they are ambivalent also. Most of the time. If suppose somebody rightly intervene, then it can be saved also. But sometimes when it is a compulsion or it has taken almost psychotic proportion that they want to hurt without being aware of what other person is going to consequences. Then they do it in that spur of moment. The issue is कि of course